Good morning, dear learners. I, Muhammad Saad from UBKWT D Pharmacy College, Kannad, welcomes you for this session. Today, I am going to deliver a lecture on pharmaceutical legislation. फार्मेसी के कायदे और फार्मेसी के विधान के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. So without any further delay, let's get started. The learning objective behind this is, after watching this video, the students will be able to define the jurisprudence, the law and the legislation. You will also come to know various pharmaceutical legislation amended time to time. You will also come to know who brought allopathic system of medicine in India, what are the loopholes before, and how the drug inquiry committee formed. You will also able to know what are the recommendations of drug inquiry committee, the possible outcomes of DEC, and the compilation of Indian pharmacopoeia. This is the index. What are the contents we are going to learn in this chapter? The introduction, scopes and objectives, history and nature of pharmaceutical legislation, drug inquiry committee and its aspects, recommendation, outcomes. Now, what is jurisprudence? It is the basic chapter in the pharmaceutical jurisprudence subjects. Hence, we have to know the definition and what is jurisprudence. The jurisprudence is obtained from a Latin word juris and prudentia. Juris means law, prudentia means knowledge. Hence, it is the scientific study or applications of the principles of law and justice. Now, what is pharmaceutical jurisprudence? Pharmaceutical jurisprudence क्या है? The definition will be is the science of laws and fundamental principle related to pharmacy profession. It covers laws, rules, regulation on medicines, drugs, pharmaceuticals, cosmetics, allied substances and pharmacy profession. This also controls and regulate the pharmacy profession and various functions thereof, including sale, manufacture, import, export, distribution, pricing of drugs or cosmetics. Here you just have to keep in mind what is pharmaceutical jurisprudence. We, the students of pharmacy, we have to know what are the law and rules related to our pharmacy profession. Hence, it is a science of law. Okay, fundamental principle, the basic principles which are related to pharmacy profession. Pharmacy profession में जितने भी जो basic principles है, okay, उन सारी चीज़ों के साथ डील करता है pharmaceutical jurisprudence, and it also covers the regulation on medicine. Whatever the medicines we manufacture, okay, whatever the drugs we manufacture, pharmaceutical, cosmetics or allied substances, and the how to practice a pharmacy profession. This all should be covered in pharmaceutical jurisprudence. Then what is legislation? Legislation क्या है? Legislation को हम कायदा भी कह सकते हैं और विधान भी कह सकते हैं. Okay, the legislation, the law intends for regulation and control of various aspects of life. Okay, ये एक law है और regulation है. Okay, जो ज़िंदगी की जो तमाम ही पहलुओं को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, legislation means a law intends for regulation and control of various aspects of life. ज़िंदगी के पहलुओं को कंट्रोल करने के लिए legislation.
दीज एस्पेक्ट्स मस्ट माइट बी सोशल, जो ज़िंदगी के जो पहलू है वो सोशल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं और पॉलिटिकल भी हो सकते हैं. बट द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज़ अ मिक्सड लेजिस्लेशन विच ओवरलैपिंगली कवर्स बोथ सोशल एंड इकोनॉमिकल. जो कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है उसके अंदर जो है सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को इंक्लूड किया गया है, एक्सेप्ट पॉलिटिकल. जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है उसको जो है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन से रिमूव कर दिया गया है. देन व्हाट इज़ लॉ? लॉ क्या है? लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी. लॉ क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है और रेगुलेशंस है जो कि रेगुलेट करता है ह्यूमंस और इंसानों का बिहेवियर सोसाइटी के अंदर. इट डिटरमाइंस ह्यूमन कंडक्ट एंड रेगुलेट इट. इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ मैटर of the jurisprudence. Then in the next topic, the introductory part of the pharmaceutical legislation, we have seen at the end of 19th century and early 20th century the allopathic system of medicine is get started and get developed. And the demand of allopathic system of medicine is increased in the 19th century and early 20th century. 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में जो है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा. और एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो ड्रग्स यूज़ की जाती थी ओरिजिन, ओके, दे आर जनरली फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, मिनरल सोर्स, ऑयल एंड एनिमल सोर्स को यूज़ किया जाता था. ओके, एंड ऑल्सो द सिंथेटिक ड्रग्स इज ऑल्सो यूज्ड इन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एट दैट सेम टाइम. ओके, उसी वक्त में क्या हुआ, जबकि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो यूज़ है वो ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसी टाइम पे जो भी लेजिस्लेचर्स थे, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी और जो भी फिजिशियंस और हकीम्स थे, ओके, उनके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट बिकम्स ए मेन मोटिव देन द सर्विस. ओके, उनके लिए प्रॉफिट जो है बहुत मेन मोटिव बन गया. ओके, खिदमत को छोड़कर. ओके, एट दैट सेम टाइम ओवरडोज ऑफ क्विनिन सल्फेट इज सीन. ओके, उसी वक्त में क्या हुआ, क्विनिन का जो है ओवरडोज देखने को मिला. ठीक है, अब नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्विनिन. ठीक है, क्विनिन का यूज़ क्या है? वही क्विनिन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. ठीक है, ड्यू टू ओवरडोज ऑफ क्विनिन. ओके, इफ द डोज ऑफ क्विनिन इज गेट इंक्रीज्ड, ओके, इन अ माइल्ड डोज, ओके, mild or in a small dose, the patient is suffering from a nausea. ओके, पेशेंट जो है एक सिम्टम से सफ़र करने लगे नौशिया, और जिसको हम कहते हैं मड़मड़ और जी मचलना. ओके, तो इन अ लो डोज ऑफ क्विनिन सल्फेट, ओके, पेशेंट जो है उनको नौशिया और मड़मड़ जो है उनको होने लगा. एंड इन अ लार्ज डोज क्विनिन सल्फेट के लार्ज डोज में क्या हुआ, पेशेंट को जो है एब्डोमिनल पेन होने लगा, और पेशेंट में आल्सो गेट सफ़र्ड फ्रॉम डायरिया. पेशेंट को जो है दस्त भी होने लगी. ओके, डायरिया क्या है? इट इज़ एन एबनॉर्मल फ्रीक्वेंट इंटेस्टिनल इवैक्यूएशन विथ मोर और लेस फ्लूइड स्टूल. ठीक है, डायरिया क्या है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंट इंटेस्टिनल इवैक्यूएशन, जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें से जो है वाटरी फ्लूइड जो है इवैक्यूएट होने लगा. ओके, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम डायरिया. ठीक है, तो ओवरडोज ऑफ क्विनिन इज सीन, ओके, इन द अर्ली 20th century. द यूज़ ऑफ क्रोटॉन ऑयल इन आई इंस्टेड ऑफ एट्रोपिन सोल्यूशन. ओके, क्रोटॉन ऑयल का इस्तेमाल किया गया इंस्टेड ऑफ एट्रोपिन सोल्यूशन. ठीक है, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्रोटॉन ऑयल? क्रोटॉन ऑयल जो है इट इज़ अ वेरी इरिटेटिंग एंड पेनफुल, ओके,
Hence it is used in laboratory animal to study how pain work. Okay, it also act as pain reliever. Okay, क्रोटॉन ऑयल का जो है इस्तेमाल किया जाने लगा लेबोरेटरी एनिमल्स को लेकर, और कैसे पेन वर्क करता है और उसको यूज़ किया जाने लगा एज ए पेन रिलीवर. ओके, इंस्टेड ऑफ एट्रोपिन सोल्यूशन. ओके, उसकी वजह से क्या होने लगा, जो क्रोटॉन ऑयल है, क्रोटॉन ऑयल इज़ आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड इट विल एक्ट एज कार्सिनोजेन. ओके, क्रोटॉन ऑयल जो है कार्सिनोजेनिक भी साबित हुआ आगे चल के कुछ दिनों के बाद. कार्सिनोजेनिक किसको कहेंगे हम, जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ एट्रोपिन सोल्यूशन. ओके, अब एट्रोपिन सोल्यूशन का क्या यूज़ है, इट इज़ यूज टू डायलेट प्यूपिल बिफोर आई एग्जामिनेशन. ठीक है, एट्रोपिन सोल्यूशन का जो है इस्तेमाल करने की बजाय जो है क्रोटॉन ऑयल का इस्तेमाल किया गया. ठीक है, और एट्रोपिन सोल्यूशन का क्या यूज़ है, इट इज़ यूज टू डायलेट प्यूपिल्स बिफोर आई एग्जामिनेशन एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट आई कंडीशंस. जो एट्रोपिन सोल्यूशंस है उसको यूज़ किया जाता था आई की डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस को क्योर करने के लिए. ठीक है, सच एज एम्ब्लोपिया और डिम विजन. ओके, किसी को खुद धुंधला दिखता है तो उसके लिए जो है एट्रोपिन सोल्यूशन को यूज़ किया जाता था. ठीक है, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिली. इनएडिक्वेट डिस्पेंसिंग एंड सेलिंग ऑफ ड्रग्स. उसी वक्त में जो है इनएडिक्वेट डिस्पेंसिंग और सेलिंग होने लगी फार्मास्यूटिकल्स की. एक्सेलेंट डंपिंग ऑफ ड्रग्स. ओके, अब यहाँ डंपिंग का क्या मतलब है, डंपिंग का मतलब है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो जो भी स्पॉन्सर्स हैं, ओके, जो जितने मैन्युफैक्चरर्स रहते थे वो ड्रग का जो है स्टोरेज करने लगते थे इन बल्क फॉर्म. ओके, ड्रग का जो है बल्क फॉर्म में उसको जो है स्टोरेज करने लगते थे, उसकी वेयर हाउसिंग करने लगते थे, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसके जो है जो प्राइस है, प्राइस ऑफ ड्रग्स जो है उसको जो है बढ़ा दिया जाता था टू गेन प्रॉफिट. ओके, एक्सलेंट डंपिंग ऑफ ड्रग इज आल्सो सीन इन दैट एरा. ओके, द ड्रग्स आर बैडली अडल्ट्रेटेड. ओके, इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. ओके, 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में क्या हुआ, ड्रग्स को जो है अडल्ट्रेट किया जाने लगा. देन द पोटेंट ड्रग्स लाइक एंटीमनी, आर्सेनिक, डिजिटलिस मार्केटेड विदाउट स्टैंडर्ड्स. ओके, अब पोटेंट ड्रग्स किसको कहेंगे हम, जिसको प्रबल ड्रग कह सकते हैं हम, ताकतवर ड्रग्स कह सकते हैं, जिसके जो स्मॉल क्वांटिटी इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इफेक्ट. ओके, जो पोटेंट ड्रग्स है लाइक एंटीमनी, आर्सेनिक और डिजिटलिस. ओके, अब आर्सेनिक का जो ड्रग है, ओके, इट इज़ यूज्ड इन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. आर्सेनिक, ओके, उसका जो है डाइल्यूटेड फॉर्म को जो है यूज़ किया जाता है टू ट्रीट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फूड पॉइजनिंग और स्लीप प्रॉब्लम्स. ओके, जो आर्सेनिक का जो डाइल्यूट फॉर्म है, ओके, उसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू ट्रीट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फूड पॉइजनिंग एंड स्लीप प्रॉब्लम्स. ओके, बट और एंटीमनी का क्या यूज़ है, यूज टू ट्रीट काला आज़ार. ओके, तो ये सारे जो पोटेंट ड्रग्स है, ओके, उसको भी जो है बिना स्टैंडर्ड के जो है मार्केट में प्लेस किया जाने लगा. ओके, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे डिज़ास्टर्स हमको देखने को मिले. ओके, एंड इन अ लीडिंग आर्टिकल एट दैट सेम टाइम इन द ईयर 1927 एंड 29 एक आर्टिकल पब्लिश हुआ. ओके, उसमें जो उसकी मेन हेडिंग्स थी, इंडिया बिकेम ए लैंड ऑफ क्वैक्स. ओके, इंडिया जो है नीम हकीम डॉक्टरों का जो है गढ़ बन चुका था. ओके, क्वैक ऑफ डॉक्टर्स एंड क्वैक ऑफ मेडिसिन मॉन्गर. ओके, दवाई देने वालों का जो है गढ़ बन गया था. ओके, क्वैक ऑफ डेंटिस्ट, क्वैक ऑफ मेडिसिन एंड क्वैक ऑफ ऑप्टिशियंस. ओके, हेंस देयर वाज practically no legislation. Okay, in that era. Okay, in the end of 20th century, 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में जो क्या हुआ, there is practically no legislation to control on drugs as well as on the pharmacy profession. Okay, उस वक्त क्या था, जो है कोई भी जो है ऐसा कानून और कायदा नहीं बना था
जो कि कंट्रोल कर सके ड्रग्स को और फार्मेसी प्रोफेशन को। हेंस इसीलिए जो है जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स थी, ओके, एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स आर रूल्ड अपॉन अस, जो ब्रिटिशर्स थे हम पर रूल करते थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है बहुत सारे कायदे बनाए, ठीक है। नाउ द स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ओके। क्यों कायदे बनाए गए? टू कंट्रोल ओवर प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ओके, कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के लिए। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ओके। कंट्रोल करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कायदे बनाए गए, ओके। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस को बनाया गया। टू मेक अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस वेरियस ड्रग्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ओके। टू सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ, ओके, पब्लिक की हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए कायदे बनाए गए। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, ओके, उनको मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है बहुत सारे कायदे बनाए गए, ओके, विच वी आर गोइंग टू सी इन फर्दर स्लाइड्स। टू रेगुलेट यूज ऑफ अल्कोहल इन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन and to levy excise duties on preparation containing alcohol and narcotic drugs, and also to control and regulate various operations related to NDPS, narcotic drugs and psychotropic substances, and the dangerous drugs in order to curb misuse of addiction forming drugs like cocaine, morphine and heroin, okay। इन सारे जो एडिक्शन फॉर्मिंग ड्रग्स है लाइक कोकेन, मॉर्फिन और हीरोइन, उसके ऊपर भी कंट्रोल लाने के लिए जो है बहुत सारे कायदे बनाए गए। एंड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट इंपोर्ट, पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन, ओके, पॉइजन को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए, उसका पोजेशन और सेल करने के लिए भी कायदे बनाए गए, ओके। तो दीज आर द सम स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। Earlier, the allopathic system of medicine was brought by Britishers to our country, and allopathic system of medicine were mainly imported. Okay, to have some control on import, British rules introduced some of the acts. Okay, Britishers ने जो है बहुत सारे रूल्स को बनाया और बहुत सारे रूल्स को इंट्रोड्यूस किया। कौन कौन से रूल्स थे वो? द इंडियन मर्चेंडाइज एक्ट 1889, the Sea Custom Act 1898, the Indian Tariff Act 1894, the Opium Act 1878, and the Poison Act 1919. Okay, these are the some act and the rules which are made by Britishers. Okay, but there were no comprehensive enough to control chaotic and deplorable conditions in the drug trade in the industry. Okay, लेकिन ये सारे जितने भी रूल्स बनाए गए, these are not sufficient, okay, to control chaotic and deplorable conditions of drugs trade and industry, okay। ड्रग की ट्रेडिंग को लेकर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए ये सारे जो रूल्स बनाए गए, these are not sufficient, okay। Hence, in the follow-up of resolution of Geneva Convention, okay, in the follow-up of resolution of Geneva Convention on dangerous drug, the Dangerous Drug Act 1930, okay, जो जेनेवा रिजोल्यूशन ऑफ जेनेवा कन्वेंशन है। जेनेवा कन्वेंशन किसको कहेंगे? ए ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल लॉ फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ वुंडेड और कैप्चर्ड मिलिट्री पर्सनल, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल पर्सनल एंड नॉन मिलिट्री सिविलियंस, ओके, ड्यूरिंग वॉर, ओके। ये जो है जेनेवा कन्वेंशन जो है एक इंटरनेशनल लॉ है जो कि किसके लिए वर्क करता है? मिलिट्री पर्सनल, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल पर्सनल और नॉन मिलिट्री सिविलियंस, ओके। जो कि उस वक्त में क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसी वक्त में जो है ह्यूमंस को सेफ गार्ड करने के लिए जो है तमामी कंट्री जो है उन्होंने गेट टुगेदर किया और उन्होंने जो है एक इंटरनेशनल लॉज बनाई, ओके।
in the Geneva Convention. Okay, the agreement originated in the year 1864. जो जेनेवा कन्वेंशन है, okay, it is originated in the year 1864 and were significantly updated in the year 1949. 1949 में जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ओके, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, तो उस कन्वेंशन का जो मकसद था, ओके, ऑन अ डेंजरस ड्रग, ओके, उसी वक्त क्या बनाया गया, द डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 वाज इनेक्टेड. ओके, 1930 में जो है द डेंजरस ड्रग एक्ट को नाफिज किया गया, ओके, टू कंट्रोल ऑपरेशंस रिलेटेड टू डेंजरस ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम, इंडियन हेम्प एंड कोका लीव्स. ओके, ये सारे जो ड्रग्स है, ओपियम, इंडियन हेम्प और कोका लीफ, ओके, इट शुड बी हेल्ड इन द कैटेगरी ऑफ डेंजरस ड्रग्स. ओके, और उसको जो है उसके जितने भी ऑपरेशंस है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 को बनाया गया, उसको जो है नाफिज किया गया. ओके, नेक्स्ट, in the compliance of Chopra's committee. Okay, in the compliance of Chopra committee reports, the Drug and Cosmetic Act 1940, Drugs और Cosmetic Act 1940 बनाया गया, was passed in the year 1940. Okay, Drugs and Cosmetic Act को पास किया गया 1940 के अंदर. ओके, तो चोपड़ा कमेटी क्या है, ओके, टू हैव कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन. ओके, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई. ओके, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई, ओके, अंडर द सुपरविजन ऑफ कर्नल R.N. चोपड़ा. ओके, रामनाथ चोपड़ा के गाइडेंस का अंडर में जो है एक कमेटी बनाई, ड्रग इंक्वायरी कमेटी. ओके, क्यों बनाई गई, ताकि टू हैव सम कंट्रोल और कॉम्प्रिहेंशंस ऑफ लेजिस्लेशन. ओके, जो भी कायदे बनाए गए, ओके, फार्मेसी के लिए जो नए नए कायदे बनाने थे उसके लिए जो है चोपड़ा कमेटी को बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल R.N. चोपड़ा. ओके, तो उसके अंदर क्या क्या पास किया गया, बहुत सारे एक्ट पास किए गए अंडर द चोपड़ास कमेटी. जो सबसे पहला एक्ट था, ओके, वो था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940. 1940 बनाया गया टू रेगुलेट import, manufacture and distribution and sale of drugs in India. Okay, the provisions of this act were enforced by framing drugs and cosmetic rules. Okay, अब जो भी provisions थे उसको जो है इन्फोर्स, उसको अमल में लाने के लिए एक रूल्स बनाया गया, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945. ओके, जो DNC एक्ट है कब पास हुआ, इन द ईयर 1940. and the DNC rule, okay, were enforced in the year 1945. okay, उसको 1945 में उसको जो है इन्फोर्स किया गया. ठीक है, नेक्स्ट, द फार्मेसी एक्ट 1948 was enacted in the year 1948 for regulating practice and profession of pharmacy. okay, फार्मेसी की प्रैक्टिस और प्रोफेशन को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो है फार्मेसी एक्ट 1948 को बनाया गया. ओके, एंड अंडर दिस ए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड. ओके, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारे सेंट्रल बॉडी है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको बनाया गया अंडर दिस एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत. नेक्स्ट है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट. ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1944. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज मैजिक रेमेडीज. ओके, मैजिक रेमेडीज किसको कहेंगे, विच क्लेम्स टू हैव मिराकुलस पावर टू क्योर, डायग्नोस, प्रिवेंट और मिटिगेट a disease in humans or animals. okay, the magic remedies किसको कहेंगे, जो कि क्लेम करता है कि दैट दिस मेडिसिन और दिस ड्रग हैव मिरेकुलस पावर टू क्योर, डायग्नोस, प्रिवेंट और मिटिगेट ए डिसीजेस इन ह्यूमंस और एनिमल्स. ओके, क्यों पास किया गया,
in the year 1954 to control certain undesirable advertisements, okay, related to drugs and to prohibit for certain purposes advertisements related to magic remedies, okay। बहुत सारे एड्स के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए जो है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट को पास किया गया इन द ईयर 1954। नेक्स्ट, द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1955 टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ अल्कोहल in medicinal and toilet preparation containing alcohol or narcotic drugs, okay। then the rules were enforced in the year 1956, okay। उसका जो rules को जो नाफिज किया गया in the year 1956 in order to have proper control on availability and price of bulk drugs and formulations। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ओके, प्रॉपर कंट्रोल ऑन अवेलेबिलिटी एंड प्राइस ऑफ बल्क ड्रग, ओके, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम इन्फोर्स किया ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ओके। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है क्या किया, टू हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑन अवेलेबिलिटी एंड प्राइस ऑफ बल्क ड्रग, ओके, उसके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए जो है एक एक्ट पास किया, ओके। From time to time, the Drug Price Control Order under the provisions of Essential Commodity Act, okay, Essential Commodity Act के अंतर्गत उसके अंडर में जो है एक एक्ट पास किया गया ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ओके, इन द ईयर 1966 and it should be amended in the furthermore in the year 1970, 1979, 87 and 1995. The Drug Price Control Order should be amended, were amended in the year 87 and 95, and in the year 1985 1985 में जो है ओपीएम एक्ट 1887 और डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, ये जो दोनों एक्ट है, ओके, द ओपीएम एक्ट एंड द डेंजरस ड्रग एक्ट, इन दोनों को जो है रिपील करके, इन दोनों को कैंसिल करके जो है एक नया एक्ट बनाया गया जिसको कहते हैं हम नार्कोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, ओके, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस टू प्रोहिबिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट वेरियस ऑपरेशंस रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ओके। प्रोहिबिट और कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को, ओके। In the next lecture, in the next upcoming video, we will see the description about the Drug Inquiry Committee. Thank you. If you like my videos, please make subscribe our channel. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।